اسرائیل کے جنگی جنون نے غزہ کو لہو لہو کر دیا۔ اسپتالوں، سکولز، عبادت گاہوں اور رہائشی عمارتوں پر بے دریغ بمباری۔ جبالیہ مہاجر کیمپ پر مسلسل تیسرے روز بھی حملہ۔ مزید 29 فلسطینی شہید۔ وسطی غزہ میں پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ 15 شہادتیں رپورٹ۔ صہیونی فوج نے 24 گھنٹے میں مزید 256 فلسطینی کو شہید کر دیا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 9061 ہو گئی۔ 3760 بچے اور 2326 خواتین بھی شہداء میں شامل۔ زخمیوں کی تعداد 32000 سے بڑھ گئی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی صہیونی مظالم جاری۔ اسرائیلی فوج نے مزید 49 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ مغربی کنارے میں مجموعی شہادتیں 132 ہو گئیں۔ شہر نابلس میں درجنوں یہودی آباد کاروں کا حملہ۔ فلسطینیوں کی دکانیں، گھر اور گاڑیاں نذر آتش۔ یہودی آباد کاروں نے بزرگ فلسطینی دکاندار کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی۔ غزہ میں اسپتالوں پر بمباری۔ صہیونی حملوں میں طبی عملے کے 135 ارکان شہید ہو چکے۔ غزہ کے انڈونیشیا اسپتال میں ایندھن ختم۔ جنریٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ سینکڑوں زخمیوں کی جان خطرے میں۔ لبنان کے اسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ صہیونی فوج کو زمینی جنگ میں شدید مزاحمت کا سامنا۔ حماس نے دشمن کے درجنوں ٹینک، بلڈوزرز اور بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی۔ حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کر دی گئی۔ القسام بریگیڈز کا شمال مغربی غزہ میں اسرائیلی قافلے پر حملہ۔ راکٹ حملے میں ایک ٹینک اور بختر بند گاڑی تباہ۔ زمینی کارروائی میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ اب تک اسرائیل کے 323 فوجی مارے جا چکے۔ جنگ میں بہترین فوجیوں کو کھو دیا۔ اسرائیل آرمی چیف کا اعتراف۔ حزب اللہ کے بعد اسرائیل کے لیے بڑی پریشانی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون مارا گیا۔ جنگجوؤں نے کریات شمونہ پر 12 میزائل داغ دیے۔ آئرن ڈوم بھی حملہ روکنے میں ناکام۔ متعدد مقامات پر میزائل گرنے سے آگ لگ گئی۔ حملوں میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ غزہ سے غیر ملکیوں اور زخمیوں کی منتقلی۔ مزید 400 غیر ملکی رفح راہداری سے مصر پہنچ گئے۔ شدید زخمیوں کو بھی سرحد پار منتقل کیا گیا۔ مصری وزارت خارجہ کے مطابق 60 ممالک کے 7000 شہریوں کو غزہ سے نکالا جائے گا۔ چین نے اسرائیل کو غاصب قرار دے دیا۔ چینی دفتر خارجہ نے کہا تنازع کی اصل وجہ فلسطین پر اسرائیل کا غیر قانونی قبضہ ہے۔ فلسطینی عوام کا خود مختار اور آزاد ریاست کا حق کئی سال سے نظر انداز کیا گیا۔ اس تاریخ ناانصافی کو روکنا ہوگا۔ چینی دفتر خارجہ کا ایک بڑے انسانی المیے کو روکنے کے لیے جنگ بندی کا مطالبہ۔ بحرین کا فلسطین میں صہیونی مظالم کے خلاف بڑا اقدام۔ اسرائیل سے سفارتی اور اقتصادی تعلقات ختم کر دیے۔ بحرین کی پارلیمنٹ نے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ اسرائیل میں تعینات بحرینی سفیر کو بھی واپس بلا لیا گیا۔ سعودی عرب نے غزہ کے لیے امداد کی عوامی مہم شروع کر دی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کا 5 کروڑ ریال دینے کا اعلان۔ عوام سے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دل کھول کر عطیات دینے کی اپیل کر دی۔ تیونس کی ٹینس سٹار کا انعامی رقم فلسطینیوں کو دینے کا اعلان۔ وہ جاری ٹورنامنٹ میں جیت کے بعد آپ دیدہ ہو گئیں۔ کہا فلسطینیوں کی حالت جیت کی خوشی منانے سے روک رہی ہے۔ انسانی جذبے نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ دنیا میں امن چاہتی ہوں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں لبنان کے دارالخلافہ بیروت میں، اور اس وقت جو ہے وہ پورے بیروت میں لائٹ چلی گئی ہے، بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ غزہ جنگ بھی کیا ہو رہا ہے؟ سنو نیوز دے رہا ہے آپ کو پل پل کی خبر۔ لبنان اسرائیل سرحد پر موجود ہمارے نمائندے طارق حبیب آپ کو رکھیں گے اپڈیٹ ہر بلیٹن میں۔
मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज जुमेरात को कराने पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वफद की सदर से मुलाकात। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी शरीक हुए। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के लिए तारीख पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ने हल्का बंदियों और इंतखाबात के लिए पेश रफ्त को सुना। तफसीली बहस के बाद आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तेफाक किया गया। ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन का अलग अलग अलामिया जारी। सारे इदारे मोहतरम, इलेक्शन कमीशन अपने मौकिफ पर खड़ा है। हमने 11 फरवरी की तारीख तजवीज की, फिर 8 फरवरी पर इत्तेफाक हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन मदाखलत भी की जाती है। तनकीद बिला जवाब, सब तक के हमारे फैसले दुरुस्त। हमने खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना तब्दील कराई, विफाकी कैबिनेट पर भी नोटिस लिया। IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का तबादला न होने के सवाल पर कहा, आप देखते जाएं। मुल्क में आम इंतखाबात का बिगल बज उठा। 90 दिन के बजाय 6 माह बाद आम इंतखाबात कराए जाएंगे। सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए 3 माह 5 दिन मिल गए। ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक राय के बाद आज सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, दस्तावेज पर सबके दस्तखत होंगी ताकि बाद में कोई मुकर न सके। इलेक्शन के निज़ाम में हम इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे कि तुम चोरी कैसे करते हो। आपने देख लिया 2018 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में जाली नतायज आए। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि जमीयत उलमा ऐसा रद्द-ए-अमल देगी। और मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप तो आज इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमने तो 2018 के बाद इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ा। इलेक्शन का ऐलान हो गया, अब हम और आप मैदानी जंग में हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सियासी मुखालिफिन को ललकार, बोले अब देखेंगे आप हमारा मैंडेट कैसे चोरी करते हैं। 2018 में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। अमेरिका को बताना चाहते हैं आपकी मर्जी से इख्तिदार में नहीं आना चाहते। हमने इजराइल एजेंट का मुकाबला किया, अब इलेक्शन में मुकाबला होगा। मुल्की सियासी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए, शरीफ बरादरान ने जाती उमरा में सर जोड़ दिए। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात, मरियम नवाज की भी शिरकत। पार्टी टिकटों की तकसीम पर भी मुशावरत, इंतखाबात की तैयारियों पर तफसीली गौर। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा, कहा जयालू ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से साबिक रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद अली और PPP गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर नायब सदर जमील अहमद की मुलाकातें, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। इवेंट में नाकाबिले शिकस्त इंडिया की 7वीं कामयाबी। श्रीलंका को 302 रन से बदतरीन शिकस्त। 357 रन के ताकुब में श्रीलंकन टीम सिर्फ 55 रन पर ढेर। 5 खिलाड़ी खाता खोले बगैर चल दिए। 3 बल्लेबाज डबल फिगर में पहुंच सके। मोहम्मद सिराज ने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। 5 विकेटें लेने पर मोहम्मद शामी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। भारत के शब्बिन गिल 92, विराट कोहली 88 और श्रेयस 82 रन बनाकर नुमाया रहे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बका का मिशन। अफगान टीम आज नीदरलैंड्स के खिलाफ लखनऊ में मद्दे मुकाबल होगी। दोनों टीम्स दिन 1:30 बजे आमने सामने होंगी। पॉइंट्स टेबल पर अफगान टीम मैचेस में कामयाबी के बाद छठे, नीदरलैंड्स 2 मैच जीतकर 8वें नंबर पर। दोनों टीम्स में अब तक 9-1 रोजा मैच में अफगानिस्तान 7, नीदरलैंड्स 2 में फाते रही है। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद का सफर। पाक न्यूजीलैंड मैच कल बेंगलुरु में खेला जाएगा। शाहीनों के लिए कीवी से जीतना नागुजीर। दोनों टीमों का वर्ल्ड कप में 9 बार मुकाबला हुआ। 7 फतुहात के साथ पाकिस्तान का पलड़ा भारी। ग्रीन शर्ट्स को ब्लैक कैप्स के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह समेटना होगी। पाक न्यूजीलैंड मैच के दौरान बारिश की भी पेशगोई।
कल दफाई चैंपियन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी शायकीन के लिए दिलचस्पी का हामिल। दोनों टीमों का अहमदाबाद में मुकाबला होगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह और साबिक बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ फुटबॉल मैच देखने मैनचेस्टर पहुंच गए। मोहम्मद यूसुफ ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पैगाम में लिखा, मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकैसल के मैच के दौरान नसीम शाह के साथ अच्छा वक्त गुजरा। सेहतयाबी के बाद नसीम शाह का हौसला बुलंद है। बासलाहियत नौजवान के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें। निगरान वजीर आजम से शाहिद आफरीदी की मुलाकात। अनवारुल हक आकर क्रिकेट की बेहतरी के लिए साबिक कप्तान को किरदार अदा करने का मशवरा। निगरान वजीर आजम का चेयरमैन PCB ज़का अशरफ से भी राबिता। सीनियर खिलाड़ियों से मुशावरत की तजवीज़ दे दी। हमने अभी उनको 7 दिन का वक्त दिया है कि वो जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं उनको साबित करने के लिए वो अपनी एविडेंस पेश करें। अगर वो एविडेंस पेश करने में नाकाम हो जाते हैं, चूंकि ये रियलिटी है ही नहीं, सिरे से ही ऐसी कोई बातचीत ही नहीं है, कोई गुफ्तगू ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये झूठ पे मुहित है। तो उनको हमने एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए 7 दिन का मौका दिया है। अगर वो ये करने में कामयाब नहीं होते, जो कि नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह हमने अपने लीगल टीम हायर कर ली है और वो तैयारी कर रहे हैं इस वक्त केस की डिटेल्स की। अगर कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती, जो कि नहीं आनी, तो इंशाल्लाह हम UK में उन पे हर्जाने का दावा दायर कर देंगे। अपने झूठ साबित करो या माफी मांगो। यूट्यूबर आदिल राजा के झूठे इल्जामात पर लंदन में कानूनी चाराजोई का आगाज। ब्लू वर्ल्ड इंतजामिया ने बरतानवी लीगल फर्म हायर कर ली। आदिल राजा को झूठे इल्जामात पर माफी मांगने की मोहलत खत्म होते ही 5 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर देगी। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर कहते हैं, पाक फौज और अवाम में कंफ्यूजन फैलाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, आखिर तक पीछा करेंगे। सेनेट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तोसी। निगरान वजीर कानून इरफान असलम की जानिब से पेश करदा करारदाद इत्तफाक़ी राय से मंजूर। साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी नैब ऑर्डिनेंस गैर कानूनी, कानून बनाना पार्लियामान का इख्तियार है। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की मुल्क बदरी का अमल जारी। अब तक 1,43,000 से ज्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी के लिए खुसूसी इंतजामात। कोयटा और पेशावर में स्पेशल कंट्रोल रूम्स कायम। पेशावर, कोयटा, खैबर, शमन और लंडीकोतल में RC कैंप्स का कयाम। पाक अफगान सरहद से सुनो न्यूज की खुसूसी कवरेज। रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो हमने उसके लिए रेंजर्स, पुलिस, स्पेशल ब्रांच, सबको हमने FIA को हमने अरेंज किया हुआ, दे विल बी ऑन स्पॉट होंगे। और उसके बाद अच्छा है, इससे जो पता चल रहा है कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनको निकालना लाजमी है। अमेरिका की 20,000 अफगान शहरियों को मुल्क बदर ना करने की दरख्वास्त फहरिस्त हमारे हवाले कर दी। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की सुनो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, लिस्ट में शामिल अफराद अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के लिए खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। हुकूमत से कहा गया कि उन्हें 1 साल में अमरीका ले जाया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वापस चले जाएं तो 60% जुराइम कम हो जाएंगे। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस का डिफेंस नादरा ऑफिस के करीब छापा। वेयर हाउस से करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड स्पेयर पार्ट्स बरामद। हब में भी कार्रवाई, गोदामों से स्मगल शुदा सामान बरामद। और पुरसोस आवाज, मुनफरिद अंदाज, सुर बाकमाल। गुलकारा रेशमा की आज 10वीं बरसी। 12 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान से फनी सफर का आगाज किया। उर्दू, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, पश्तो और राजस्थानी जुबानों में गायकी का लोहा मनवाया। फनी खिदमात पर मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा गया। बाखबर रहिए
ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔